Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 10 of your class 2 science, that is air around us. You know, everywhere there is the air. All human beings need air to live. Without air, we cannot live on Earth. We cannot survive on this beautiful planet. We need oxygen to breathe, and we exhale carbon dioxide that plants breathe. So air is everywhere in our atmosphere. Let's begin with this lesson. You know, we cannot touch air, we can just feel air. Air is everywhere. In this chapter, we will learn about we need air. Why do we need air? Second, air pollution. Third, wind. Fourth, properties of air. Fifth, constituents of air. And the last one, fresh air. So let's begin with this lesson. Observe the picture given below and answer the question that follow. You have to observe this picture and you have to answer these questions. What is filled in the balloons? Of course, air is filled in the balloons. Second, what makes the kite move? Kite किसकी वजह से move हो रही है? Air की flow की वजह से, wind की वजह से या फिर air की वजह से? All living things need air to live. सब living things को air क्यों चाहिए? Live के लिए, रहने के लिए चाहिए. Air is present all around us. Air हमारे चारों तरफ present है. We cannot see, smell और touch air. हम air को देख नहीं सकते, smell नहीं कर सकते और touch नहीं कर सकते. We can feel air when it moves. हम air को कब feel कर सकते हैं? जब वो move कर रही होती है. Blow air on your hand. आप blow करिए अपने hand पे air. You can feel the air touching your skin. Yes, of course, when you will blow the air on your hand, you can feel the air that is touching your skin. We need air. Why do we need air? We need air to breathe. Air is present all around us. Air हमारे चारों तरफ present है, but we cannot see it. हम उसे देख नहीं सकते. We can only feel it, its presence. हम उसकी presence को feel कर सकते हैं, but we cannot see it. If you flap a hand fan near your face, अगर आप flap करोगे hand fan को अपने face के पास, you will feel air. If you ride a bicycle, you will feel the air against your face. अगर आप bicycle ride करोगे, आपको अपने face के पास air feel होगी. Now, humans, plants and animals all need air to live. सबको चाहिए air रहने के लिए, like humans को भी चाहिए, plants को भी चाहिए और animals को भी चाहिए. Without air, these living things would die. Air के बिना ये सारी जो living things है वो they can die also. All living things air to breathe. Now wind. Wind क्या होती है? Moving air is called wind. जो even air move कर रही होती है उसको क्या कहते हैं? Wind कहते हैं. Wind is very useful to us. Wind क्या है हमारे लिए? बहुत ज़्यादा useful होती है. Wind dries wet clothes. Wind क्या करती है? जो wet clothes होता है, आपकी जो मम्मा wash करती है wet clothes को, वो dry किससे होता है? Wind से ही होता है. Wind moves sailboats. अगर wind नहीं होगी तो sailboats move नहीं कर पाएंगी. Wind rotates the blade of a windmill. जो हमारी windmill होती है, उसका blade को कौन rotate करता है? Wind करती है. Wind help hot air balloons to fly. जो hot air balloons ऊपर fly कर रहे थे sky में, वो किसकी वजह से होता है? Wind की वजह से होता है. A gentle wind is called a breeze. जो gentle wind होती है, उसको क्या कहते हैं? Breeze कहते हैं. A breeze can move dry leaves on the ground. जो breeze होती है वो जो dry leaves हमारे ground पे पड़ी हुई होती है उनको easily move कर देती है. A strong wind is called a gale. जो strong wind होती है उसको क्या कहते हैं? हम gale कहते हैं. Gales can blow off the branches of trees. जो क्या करती है वो जो branches होती है trees की उनको blow कर देती है. A very strong and noisy wind is called a storm. जो बहुत स्ट्रॉन्ग वो जो बहुत ज़्यादा नॉइसी विंड होती है उसको क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, विंडोज की आवाज़ आ रही है, तो उसको कहते हैं हम स्टॉर्म कहते हैं. अ स्टॉर्म कैन ब्लो अवे द रूफ्स ऑफ हाउसेस. जो स्टॉर्म होता है वो रूफ्स भी ब्लो कर सकता है हाउसेस की. इट कैन इवन अपरूट ट्रीज. वो ट्रीज को भी गिरा सकता है, वो ट्रीज की रूट्स भी बाहर आ जाती है. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर? एयर किससे बनी हुई होती है?
एयर इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूमरस गैसेस। एयर में क्या होते हैं, बहुत सारी n नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है। इट हैज वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट। क्या क्या होता है, वाटर वेपर होता है, स्मोक होता है और डस्ट होता है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में क्या होती है, वाटर वेपर होता है। When we hang wet clothes put in the sun, they dry up after some time. जो हम हैंग करते हैं वेट क्लोथ्स को सन में, तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं। Where does this water go? वो वाटर कहाँ जाता है? The water in the clothes changes into water vapor. जो वाटर क्लोथ्स पे होता है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में and goes into the air. एयर में चला जाता है। The heat of the sun change the water from these clothes into water vapor. जो heat होती है sun की, water को water vapor में change कर देती है। In the same way, heat of the sun changes water in ponds. इसी वे में जो heat होती है sun की, वो किस में change करती है water को? ponds में change कर देती है। जो water होता है ponds का, lakes का and rivers का, seas का। Additionally, this water changes into water vapor. जो additionally होता है, ये जो water vapor होता है, किसमें change हो जाता है हमारा? water vapor में change हो जाता है। It goes into the air. वो कहाँ चला जाता है? air में चला जाता है। फिर now air contains dust. Yes, air में dust होती है। हमने देखा वो जो बहुत strong सा आता है, बहुत तेज हवा चलती है, तो आप उसमें dust particles दिखते हैं ना। The air has dust in it. Where does this dust come from? ये dust कहाँ से आती है? Dust particles are very light. जो dust के particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा light होते हैं। They mixes with air easily. वो air के साथ बहुत easily mix हो जाते हैं। Fast blowing air carries dust particles. जो fast blowing air होते हैं उसमें क्या होते हैं? Dust particles होते हैं। You can see in this picture. When you sweep the floor of a room, you collect the dust particles. जो आप रूम के फ्लोर को स्वीप करते हो, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। नाउ एयर कंटेन्स स्मोक। एयर में स्मोक कैसी होती है? ऑफकोर्स एयर कंटेन्स स्मोक। एयर में एयर पॉल्यूशन भी होता है स्मोक की वजह से। व्हेन वी बर्न समथिंग वी गेट स्मोक। जब भी हम कोई चीज को बर्न करेंगे, लाइक प्लास्टिक या पेपर या कुछ भी, तो उसमें से स्मोक निकलेगी। इट राइजेस एंड मिक्स विद द एयर। राइज करती है और किसके साथ मिक्स हो जाती है? एयर के साथ मिक्स हो जाती है। Vehicles such as cars, buses, trucks and trains also release smoke. कौन से व्हीकल स्मोक रिलीज करता है? कार्स हो गई, बसेस हो गई, ट्रक्स एंड ट्रेन्स, दे रिलीज स्मोक। इट ऑल्सो मिक्सेस विद द एयर। किससे मिक्स हो जाती है वो? एयर से मिक्स हो जाती है। द एयर दैट हैज डस्ट एंड स्मोक इज कॉल्ड impure air. जिस एयर में डस्ट और स्मोक होता है उसको क्या कहते हैं? impure air कहते हैं। एंड causes air pollution. और वो क्या कॉज करता है? एयर पॉल्यूशन करता है। You know what is air pollution? Dust smoke and other harmful gases make the air impure. जो dust हो गई, smoke हो गई और other harmful gases होती है, वो क्या करती है? एयर को impure कर देती है। This is called air pollution. उसको कहते हैं हम air pollution. Polluted air is not good for breathing. Polluted air जो होता है वो किस लिए गुड नहीं होता? breathing के लिए अच्छा नहीं होता। When a sick person coughs, जो एक sick person होता है वो कफ करता है, the germs mix with the air. जो germs होता है वो किस में मिक्स हो जाता है? एयर में मिक्स हो जाता है। They disperse everywhere through the air. वो इधर उधर एयर के उससे चले जाते हैं। And other people also catch them and get infections. जो other people होते हैं वो कैच कर लेते हैं उनको और infections हो जाते हैं। So polluted air is the source of many diseases. जो polluted air है वो क्या है? बहुत सारी डिजीजेस की सोर्स है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एयर फिल स्पेस। एयर जो है कोई एक एम्प्टी स्पेस वो इजिली फिल कर देता है। लाइक यू ब्लो अप अ बलून, किसकी हेल्प से ब्लो कर सको? एयर की हेल्प से, तो क्योंकि बलून के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होता है। सेकेंड, एयर गिव्स शेप टू द थिंग। यस, एयर किसी भी चीज को शेप दे देता है। लाइक यू हैव अ पॉली बैग इन योर हैंड, इफ यू ब्लो इट तो उसमें एक शेप आ जाएगी। एयर हैज वेट। एयर के अंदर वेट भी होता है। यस, अगर आप सपोज एक बलून है वो खाली है, उसमें वेट नहीं है कुछ ना, उसे आप ब्लो कर लो और उसे एक स्केल पे रख के देखो, आपको उसका वेट फील होगा। इफ वी फिल एयर इनटू अ डिफ्लेटेड फुटबॉल, अगर आप एयर फिल करोगे एक डिफ्लेटेड फुटबॉल में, इट गेट्स बिगर, राउंडर एंड ऑल्सो हैवियर देन द डिफ्लेटेड फुटबॉल। तो फिर वो क्या होगी? बिगर हो जाएगी, राउंडर हो जाएगी और हैवियर हो जाएगी पुरानी वाली फुटबॉल से, डिफ्लेटेड फुटबॉल से। नाउ ओरल क्विज,
Why we cannot survive without air? हमें एयर के बिना सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते? Because air contains oxygen also, and we cannot survive without oxygen. Oxygen help us to breathe. Air, fresh air. Fresh air क्या होती है? The air we breathe is in should be clean and fresh. जो भी air हम breathe करेंगे वो क्या होनी चाहिए? Clean होनी चाहिए और fresh होनी चाहिए. Fresh air keeps us healthy. जो फ्रेश एयर होती है वो हमें हेल्दी रखती है. प्लांट्स हेल्प द एयर, हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को फ्रेश और क्लीन करने में हेल्प करते हैं. सो वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स. तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. वी शुड प्ले इन ओपन एरिया सच एज पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स. हमें ओपन एरिया में प्ले करना चाहिए, जैसे पार्क्स हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गया, क्योंकि हमें वहाँ फ्रेश एयर मिलती है. वी शुड लेट इन फ्रेश एयर इनटू आवर होम्स थ्रू डोर्स एंड विंडोज. हमें अपने विंडोज और हमने अपने हाउसेस को प्रॉपर वेंटिलेटेड बनाना चाहिए, जिससे फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आ सके डोर्स से और विंडोज से. नाउ आंसर मी. टिक द थिंग दैट हैव एयर इन प्रेजेंट इन देम. क्या क्या चीजें होता है? आइस में होता है नो, वुड में होता है नो, बलून में होता है यस, स्मोक में यस, पेपर में नो. Now recapitulation of this lesson. First point, air is all around us. Air हमारे चारों तरफ present है. Second point, all living things need air to breathe in. सब living things को क्या चाहिए? Air चाहिए breathe करने के लिए. Third, air contains water vapor, smoke and dust. Air में क्या होती है? Water vapor होता है, smoke होता है और dust होता है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.